Let's talk about, down the order what we saw from Surya Kumar Yadav. Shoaib, what a spectacular knock once again, 35 off 16 from him. Who does he remind you of as a batter, or do you think he's the first of his kind, especially in this format? Look, let's talk about a little bit. I think the roles. I think the Kohli should not come as an opener, and Rishabh Pant could have been a great choice as an opener. Play with the newer ball, and Kohli comes in number one down. Same pattern, but number one down. And imagine Surya Kumar Yadav is coming in and he's acting so mature. He's taking singles, giving a strike to the senior batsman. Ask him to you take on, and if it gets difficult, I'll take the charge too. When he takes the charge, he gets 31 or 16 balls, and it takes him on. And it was a beautiful shot, by the way. It was a proper cricketing shot, then we say. He takes off a lot of pressure off Rohit Sharma. You go on to play your things, I'll do my things. But with cautiously approached. I mean, like this shot was reminded me of 92 shots of Inzamam. Look at that. So it's just amazing. Look at him. Full I mean, face the way he lends hand to the captain so maturely. It's just so beautiful to see. No rational shots. Nothing of the sort. Yeah. Why is it that some batters just look like they have so much time at the crease? For me, he's someone who looked like he was almost in slow motion. Yeah, I know. No, he trained himself like that. Yeah. He trained himself like that. He's the only batter in nowadays after Abby de Villiers. He just play, he just stays stable. His bat is there and his head is still, and then he play accordingly the ball. The ball pitch is the outside of the off stump. He goes for that shots. In extra cover or point, if there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. And 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah, the way he approach himself. Yeah. And now in this batting order of India, they now rely only Rohit Sharma and on Virat Kohli. All of the batter they play like that. So they know their roles. And they are there for their job. They are not depend on if they are the Virat Kohli or Rohit. On the day they are a match winner, but they not rely only on them. All of the batter they are the match winners. Professor, your thoughts, because you have already mentioned a bunch of times कि आप चाहेंगे जायसवाल आए open करें, but हम जितनी बात कर रहे हैं about this apparent problem that India have with the opening. There doesn't seem to be any problem on paper, at least, because they've been scoring runs, they've been defending runs, things are working out fine for them. देखें जो उन्होंने प्लान किया है वो उसी पे स्टिक करके अपनी क्रिकेट खिला रहे हैं, which is absolutely a fine way to move forward. लेकिन अगर मैं अभी भी अगर दुबे की बात करूं तो उन्होंने आज भी जो इनिंग्स खेली जहां पे हर जगह पे शॉट लग रहे थे, वो उस स्ट्राइक रेट या उस क्वालिटी का प्लेयर नहीं लगा. मैं ये कतई नहीं कह रहा कि दुबे अच्छा प्लेयर नहीं होगा. मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 पे आता है, नंबर 3 जो उसका फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ, अगर वो 3 पे आ जाए और दुबे की जगह जायसवाल जैसा टैलेंट ओपनर खेल ले तो उसमें विन विन सिचुएशन है इंडिया की. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि दुबे को निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे पहले ट्राई कर दिया जाता तो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है. उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है. तो क्यों ना वो लर्न करे रोहित शर्मा से एज एन ओपनर, क्यों ना वो लर्न करे विराट कोहली से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू प्ले लॉन्गर. तो ये वो चीज़ें मेरी समझ ये कहती है, बट जो वहाँ पे बैठे हुए हैं दे मेकिंग द बेस्ट डिसीजन. और वो एक प्लान जब आप उन्होंने ले लिया, उन्होंने सोच लिया कि ये हमारा प्लान है, दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट. दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द आईसीसी इवेंट कि आपका जो भी प्लान होता है वो आप उस पर स्टिक कर जाते हैं. लेकिन ये एक ऑप्शन थी जो अभी तक नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं लेंगे. अब इस वक्त पे डिस्कस करना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो उनके सेट पैटर्न के ऊपर 6 बैट्समैन आगे हैं वो उसी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच इज़ गुड इनफ. देखिए मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा. देखिए उन्होंने आईपीएल में विराट कोहली को क्या मैसेज दिया कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें और ऊपर खेलें, हम आपको बैक करेंगे कुछ भी हो जाए. हम जितना भी यहाँ कह दें कि उसको नंबर 3 आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी ये कह रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, उस पर रहेंगे. और हम स्वयं दुबे की बात कर रहे हैं. देखिए अभी हफीज़ ने 2-3 दफ़ा ये बात मेंशन भी की है कि कामरान गुलाम चले गए थे छोड़ के कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम नेशनल टीम से हमें खिलाना ही नहीं है. तो ये देखिए उनके
उनको लगा कि मिडल ऑर्डर में ये कैसे, जो इन्होंने आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेस किए हैं, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस पे उनको वो बैक करें, वो खिला रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, या उस तरीके से परफॉर्म नहीं करें, उन्होंने एक फैसला कर लिया है, एक प्लान बना लिया और उसको अब वो बैक कर रहे हैं। तो यही वो बात है कि आपको अगर आपने एक प्लान कर लिया है एज अ बोर्ड, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, एज अ लीडर, तो आप उसको बैक करना है। यही रोहित शर्मा कर रहे हैं, कि चाहे यही विराट कोहली भी कर रहे हैं। वो अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को हम सब सजेशन दे रहे होंगे कि भाई थोड़ा 6 ओवर आराम से खेल लो, और उसके बाद जो है वो आप जैसे वो खेलते हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि बाजुकात जब आप नंबर 3 आते हो, बेशक आपको पहले या दूसरी बॉल भी बाजुकात खेलनी पड़ती है, पहले या दूसरे बॉल पे ओपनर भी आउट हो जाता है, आप जाते हो, लेकिन वो उसको विराट कोहली अलग नज़र आ रहे होते हैं। वो जो नर्व्स होते हैं, 2 4 6 बॉल देख लेते हो, फिर आप जाते हो। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, उस पर वो अटल रहेंगे। और अगर विराट कोहली की भी बात करें तो वो भी ये नहीं करेंगे, वो भी वो 6 जो पावर प्ले है उसके हिसाब से खेलेंगे, वो आएंगे एग्रेसिव खेलेंगे, चाहे वो आउट हो नहीं हो। और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई 4 5 6 10 15 बॉल खेल लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसे ही खेलेंगे। और रोहित शर्मा भी ऐसे खेलेंगे। प्लान सेट हो चुका है ना, फॉलोइंग द प्लान, एंड द प्लान हैज फेल्ड एज वेल इन द फर्स्ट प्लान 3 कौन सा गेम्स लोहे पे लिख लिया है? डिस्पाइट प्लान चेंज हो सकता है। बिल्कुल आपको लगता है आप सेमीफाइनल में नेचुरल ऐसा ओपनर नहीं है विराट कोहली, इज अ नेट अ नेचुरल ओपनर। You're asking him something which he hasn't done it in international format for last 10 years, by the way. He's done it on number 1. Talking about 1 down. He's done it on number third position I'm talking about. So ask him to go out there and just slash. He can't slash it because he cannot comprehend the bounce. He cannot understand the sheen of the ball, because rather, what he does when he becomes number 1 down. He takes a few balls, he collects a few runs, running between the wickets, absorb the pressure, minute he finds a loose ball, goes for the 4. That's what he does, nah? Yeah. That's all his batting is all about. And when he thinks that his strike rate is going down, he comes out of the streak, comes out of the crease, and he scores some quick runs to make it equal. So what do you mean plan? Punt is right there in front of you. If I was the captain, I'll ask punt, go slash it, left and righty, take a pick. I think it's going to be a great combination. By asking somebody who's not capable of doing such thing, I'm not saying that he's not capable of doing that, but he's not able to deliver it because there's more pressure on the captain to deliver it. Though Rohit Sharma has all the shots in the world and he displayed that to do, isn't it? Yeah. But again, I really think that, Surya Kumar Yadav is actually playing the critical part, and so is the Pandya, is winning the games for you. These two. If the top 3 is not performing, and them 2 is actually taking a lot of burden of the team for you to win it. And the Bumrah and the Kuldeep, that is the key. You should have attacked them more. Yeah, but now they're looking at 2 very important games up ahead, so it's unlikely that they will change that order now at this point. But it's good to have options. It's good to have more plans. Problem Let's see plenty. what they go ahead with. A short break here on HMR Waterfront presents Game On Air. When we come back, a little more on this spectacular match, and of course we'll try to build up to the next one as well. Act like that so fearlessly. But Yunus, अगर हम flip side पे Australia का approach देखें towards this chase, when Mitch Marsh and Travis Head were batting, the run rate was pretty much under their control. Even then, they were scoring at 9, 10 and over, but it was in their hands, and it looked like Australia will smoothly chase and sail down that, scoreboard, finish the game. जो हमने पहले भी मैच से पहले भी बात की थी कि what do they do once their openers fail? How will you assess कि आज की चेज कैसे उन्होंने, कहाँ पे आपको लगता है सबसे मेजर गलतियाँ हुई आज ऑस्ट्रेलिया से? रोहित शर्मा तो एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, और मैं खास ये सारा जो पहली इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने वो कहते ना मेला लूट लिया। उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात हो, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंट के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके। उन्होंने फ्रंट से लीड किया। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग जो भी कैप्टन जीतेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी ये कह रही थी और दोनों कैप्टन भी है, तो हमने ये भी कहा कि चलो अच्छा हो गया कि इंडिया टॉस हार गया, तो ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे। और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूँ तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे। कितने रन दिए उन्होंने? 4 ओवर में 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हुए। तो कितने रन थे वहाँ पे उनके? तो इसका मतलब ये हो कि देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है? तो देखिए ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज एक ओवर, एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मोमेंट पे आप जो है वो
गेम में आ जाते हैं। वो क्या क्या मूवमेंट थी, अक्षर पटेल का वो कैच, वहाँ उस वक्त क्या आस्किंग रेट था और किस रेट से वो जा रहे थे, अहेड थे वो। एक अच्छा कैच, एक मोमेंट वो जो है वो आपको गेम में ले आती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुत सी टीमें चेस करना पसंद करती हैं, देखें, लेकिन जो यहाँ पे हफीज़ भाई को मैं बैक करूँगा, ये हमेशा एक बात करते हैं, हम जितनी भी ट्रांसमिशन किए कि या तो पहले वो 3 ओवर आप मुश्किल में खेल लो या बाद के 20 ओवर मुश्किल में खेल लें। तो ये हार्ड चॉइस चूज़ किया उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने बाद के 20 ओवर मुश्किल खेले। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद जो हम हमेशा एज ए कैप्टन बात करते हैं, 20 रन फिर भी कम हुए हैं कहीं, मुझे लगता है नहीं तो 225 रन होने थे। और मैं रोहित शर्मा को हेड्स ऑफ टू हिम कि वो आए और 11-12 ओवर में आउट होकर भी चले गए और अब 92 रन करके चले गए। तो देखिए यही अच्छे लीडर की क्वालिटी है। और जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी शॉट्स की, वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, स्टार्की ने उनको अब बोले हाफ वॉलिस दिए, लेकिन फिर भी हाफ वॉलिस के लिए भी आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए, आपका बेस होने चाहिए, आपका बैट स्विंग होने चाहिए, आपका हेड स्टिल होना चाहिए। और जो ख़ास तौर पे 2-4-6 शॉट्स हमें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नजर आए, वो इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो वेल प्रिपेयर